Now, here's a question. You know, you've been on this program many times, और आपने जैसे कि बाकी एक्सपर्ट्स भी हैं, आपने हमेशा बोला कि आपको जो वैक्सीन मिलती है, जो भी अप्रूव्ड WHO की वैक्सीन है, आप उसको लीजिए. ये इसमें मत पड़िए कि कौन सी वैक्सीन किस वैक्सीन से बेहतर है. But when we come to real world practices, a lot of people are beginning to see that the mRNA vaccines, the Pfizer and Moderna vaccines, are being privileged over the other vaccines. In particular, AstraZeneca को लेके तरह-तरह की मुसीबतें लोगों को आ रही हैं, especially when it comes to the opening up of borders, right? Are you comfortable with this hierarchy among vaccines? And do we now have science to say that one lot of vaccines is better than the others? And if we have that science and we put it out, what's that going to do to an already existing vaccine hesitancy? It's a very complicated question. I'm in a no-win situation. No matter what I say, I will annoy some people. Lekin, as you know, I will always respectfully, gently speak my truth. Because I think, देखिए, there is no way to hide the truth, and it's not ethical to hide the truth. मैं वो बात कैसे लोगों को कह दूं जो मैं अपनी फैमिली को नहीं कह रहा. So if you called me from Pakistan and you were my immediate family, or from America or India, this is what I would tell you. Number one, please get the vaccine that is available to you. इंतज़ार मत कीजिए. Delta variant is everywhere. अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है? आप जहाज़ का टिकट लेंगे, but if you can't get a plane ticket, are you going to start walking to Bombay? आप ट्रेन लेंगे ना, या कार पे चले जाएंगे. Whatever is your next best option. It may not be a great option, लेकिन आप पैदल तो नहीं जाएंगे ना. So similarly, don't try to fight this pandemic with anger, with emotion. अगर आपको Pfizer नहीं मिल रही, next year ले लीजिए. So that's the most important message. But if you tell me that you have all options, even though these vaccines have not been head-to-head compared, but now in 6-7 months we have enough data. और मैं ये कहूँगा, and I know लोग disagree करेंगे, but I think it's pretty obvious. If you're my family member, I will say mRNA vaccines should be your first preference. Pfizer या Moderna. वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स उसके बाद हैं. जॉनसन एंड जॉनसन है उसमें, एस्ट्राजेनेका है, स्पुटनिक है, आई थिंक एक चाइनीज़ वैक्सीन है, और उसके बाद जो ट्रेडिशनल वैक्सीन्स आती हैं. इन माय माइंड, गॉड इज़ माय विटनेस, नेशनलिज्म नेवर क्रॉसेस माय माइंड. क्योंकि मेरा कौन सा मुल्क रह गया, हम कहाँ बैठे हैं. मेरे लिए इट्स वेरी इजी टू जस्ट एसोसिएट विद पीपल ऑन अ ह्यूमन लेवल. क्योंकि कल अमेरिका धक्के निकाल के फेंक देगा तो मुझे कहीं और जाना होगा. सो आई हैव टू बी वेरी क्लियर. आई डोंट पुट माय रूट्स एनीवेयर नाउ, क्योंकि सब इंसान एक ही हैं. सो आई थिंक दोज 3 tiers, इट्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट. ये कहना कि ये सब बराबर हैं, आई फाइंड इट डिफिकल्ट. आई डोंट फाइंड इट वेरी ऑनेस्ट इन माई सेल्फ. बट आई विल अगेन क्लोज विद द सेम पॉइंट कि देखिए, जो वैक्सीन आपको मिलती है आप लगवा लें. हियर इज़ द अदर पॉइंट. इसका फॉलो अप क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि मैंने लगवा ली, पहले कोवैक्सीन लगवा ली या कोई चाइनीज़ लगवा ली, अब मैं फाइज़र लगवा लूँ उसके ऊपर. एंड आई ऑलवेज टेल पीपल, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए. इफ़ यू आर 65, बिकॉज यहाँ एक जवाब नहीं होगा. इफ़ यू आर 68 years old डायबिटिक ऑन डायलिसिस, तो मेरा आंसर होगा आप लगवा लीजिए फाइज़र. इफ़ यू आर 40-year-old हेल्थी, आई वुड से जस्ट वेट अनदर 3 months, क्योंकि 3-4 महीने में और डेटा आ जाएगा. सो बी मोर केयरफुल. और ये अभी का जो डेटा है, I just want to reiterate what you've said. The data available with us right now, again, get the vaccine that you can get. The emphasis has to be on protection against hospitalization and death. And all of these vaccines offer varying percentages of protection against that. लेकिन आप ये कह रहे हैं कि in the order of effectiveness, the mRNA is on the top, the vector-based, like you said, J&J, AstraZeneca after that, and the traditional vaccines at the bottom of that pile, which would then, for Indians, because I know यहाँ पे इस सवाल को लेके काफी interest होगा, आप ये कह रहे हैं कि Covishield is more effective than Covaxin. हाँ, अब मुझे पता है ये दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन वंस अगेन. एक तो मैं इस समझ में मेरे नहीं आता कि व्हाई इज एस्ट्राजेनेका एक्सेप्टेड इन सो मेनी कंट्रीज फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल व्हाइल कोविशील्ड इज नॉट, जो कि एक ही वैक्सीन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अलायंस, क्योंकि बहरहाल कोविशील्ड एक वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है. उसकी रीच, उसकी रिसर्च, उसके ऊपर जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है. इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये फैक्ट है. लेकिन
जहाँ तक कोवैक्सीन का ताल्लुक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मेरी नज़र में और अभी तक जो डेटा, आई थिंक दे आर ऑल इक्वली सेफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, शायद एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, वन कैन आर्ग्यू कि शायद वेक्टर बेस्ड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की ज़्यादा बात हुई है, लेकिन इट्स जस्ट सच लार्ज नंबर्स, सच स्मॉल साइड इफ़ेक्ट्स। अगर मान भी लें कि उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, तो व्हाट्स इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि जो आपकी कोवैक्सीन है, आई थिंक इज़ अ वेरी सेफ वैक्सीन। इसके ऊपर मुझे कहीं कोई फिक्र की बात नज़र नहीं आई। And actually, I was going to say that the efficacy data, Covaxin took its time, and that was one of the Not problems, that bad. placing that data. But the efficacy data is pretty good, It's not that actually. bad. And Exactly. you're saying it's not that bad. I'm saying it's pretty good. I think a lot of people would push back against your surmise that the traditional vaccines at the bottom of the pile, in terms of relative effectiveness. I again want to underline that this is all relative. Why do you believe that the traditional vaccines have not done, in your जी estimation, जी, as well as the other vaccines? 2-3 रीजंस हैं। बिल्कुल आपका अच्छा पॉइंट है। एक, अगर कोवैक्सीन को लीजिए या चाइनीज़ वैक्सीन्स को ले लें, साइनोफार्म, साइनोवैक, इफ़ यू लुक एट द पब्लिश्ड डेटा, और सिर्फ डेटा एक ये नहीं है कि फ़ेज़ 3 ट्रायल आ गया, उसके बाद सब ग्रुप एनालिसिस आ रहे हैं, प्रेग्नेंट वेमेन में उसका रिस्क आ रहा है, हेल्थ केयर वर्कर्स में उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, द सेम वैक्सीन गेट्स यूज्ड मोर एंड मोर पॉपुलेशन डेटा स्टार्ट्स पाइलिंग अप। वो डेटा मुझे इन वैक्सीन्स पे बहुत कम नज़र आया, नंबर वन। नंबर टू, आपने देखा है कि डेल्टा वेरिएंट की कितनी बुरी वेव से इंडिया गुजरा है, और आई अंडरस्टैंड कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं थी उस वक्त, सो वी कैंट से कि इट वाज फेलियर ऑफ वैक्सीन। लेकिन इफ़ यू लुक एट मंगोलिया और बहरीन और सेशल्स, वो मुल्क जिन्होंने हेविली चाइनीज़ वैक्सीन यूज़ की, and then they saw a significant increase in hospitalizations and in some cases as death as well. अभी जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ कनाडा से या यूके से या यूएस से, जहाँ mRNA वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं, you can see the cases going up, but But you is don't that see. particular vaccine? I mean, the automatic question would be, is that the problem with the Chinese vaccine? You see, we have no real-time data right now for Covaxin, for example, in India, because it's been the last to place its phase 3 data, and to, in terms of volume, more Indians right now are getting the Covishield than the Covaxin. So what you're saying, is that a particular estimation of the Chinese vaccine, or is it for all traditional vaccines? We don't know yet, maybe. ऑफ कोर्स, हाँ देखिए, ऑफ कोर्स वी डोंट नो येट, लेकिन इसके दो ही तरीके हैं ना इस वक्त इस चीज़ को। एक ये है कि आप रोबस्ट साइंस पब्लिश करें, you know, in 3,000 patients, 5,000 patients, you keep publishing robust science in different populations, and that way you establish trust with a vaccine. और दूसरा उसका तरीका ये है कि you do mass vaccination of a country, and if that country doesn't get another wave, you have a very significant data point, right? But if that same country gets a wave, तो लोग यही क्वेश्चन करेंगे ना कि how did that happen? So मंगोलिया की मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि their prime minister went for a very massive vaccination drive with the Chinese vaccine, 50-60% से ऊपर, उसके बाद they get a big wave. So it gets very hard. This is that real world जिसकी FDA इस वक्त इंतज़ार कर रहा है for Pfizer as well. So मेरा ख्याल है कि इसमें से बच के निकलना बहुत मुश्किल है. Truth will come out. A good vaccine will prove itself. उसके अंदर मेरी और आपकी बात रहेगी नहीं. तो आज बहरहाल जो भी मैं कह रहा हूँ इसके अंदर 100% सर्टनिटी नहीं है, मैंने इसको मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है, ये तो एक गट फीलिंग है। मैंने आपको सिर्फ, और बार बार मैं ये कह रहा हूँ, आई कुड बी रॉन्ग, पीपल कैन डिसएग्री विद मी एंड आई विल नॉट पुश बैक। मैंने इसीलिए फ्रेम इस क्वेश्चन को यूँ किया था कि इफ़ माई ओन फैमिली कॉल्स मी, दिस इज़ व्हाट आई विल टेल देम। और मैंने इसको हमेशा अपने आप को समझाया कि इफ़ आई कैन आंसर द क्वेश्चन दैट वे, देन आई एम फाइन, क्योंकि आई एम ओनली गिविंग यू द बेस्ट गेस दैट आई हैव टुडे,